Hi everyone. In this lecture, we will study how to find the particular integral of linear differential equation. So in last lecture, we discussed the rules to find the complementary function, and we take some example where we find the complementary function. But whenever we have to find the solution of a differential equation, so it is always considered as a complete solution, and complete solution is nothing but the value of complementary function plus particular integral. So method to find the complementary function is same throughout the chapter as we discussed in previous lecture. So in this lecture, we focus on the determination of particular integral for the linear differential equation. So before that, we discuss one definition, that is the inverse operator, which is used in the formula of particular integral. So what is the inverse operator? So 1 upon f of dx is a function of x not containing arbitrary constant, because we know that complete solution is equal to complementary function plus particular integral. So from this, complementary function contains an arbitrary constant, but particular integral containing no arbitrary constant. So this is the form of the solution. So whenever we have the differential equation, so this differential equation is of the form this type, where this is the auxiliary equation. Suppose we take x equal to 0, we get the auxiliary equation. So it is in symbolic form. So if you write this f of d as 1 upon f of d and operate on x, so we get the value which is equal to the function of x, but it does not contain arbitrary constant, right? And it satisfies this equation. So suppose this is f of d into y equal to x. So suppose I have put y is equal to 1 upon f of d into x. So if you put y is equal to 1 upon f of d into x, we get f of d into 1 upon f of d into x is equal to, this cancel, we get x, which is equal to RHS. Means this 1 upon f of d into x satisfies the equation f of d into y for y equal to 1 upon d into x. Thus 1 upon f of d into x satisfies the equation f of d into y is equal to x, and therefore this term is said to be a particular integral. So the formula for particular integral is given by particular integral is equal to 1 upon f of d into x. Here for simplicity we take x. Many authors use x or someone use f of x. So these are the various notation to represent the function on the right hand side. So this is x, it considered as a function of independent variable. If x is an independent variable, so it is a function of x. If the independent variable is written as t, suppose we have the differential coefficient dy by dt, so it is a dependent, it is an independent, so x is a function of t or constant. So you just remember the formula for particular integral is given by 1 upon f of d into x. आपको ये फार्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है. तो हर प्रॉब्लम में अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, वो फार्मूला यही होगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स. तो एक्स जो है इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा. ठीक है, तो इट इज कंसिडर एज अ इनवर्स ऑपरेटर. नाउ वी एक्चुअली मूव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल? तो सपोज वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन. हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स है. तो ये कौन सा फॉर्म है? इट इज इन सिंबॉलिक फॉर्म. इट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है. तो सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा.
फिर हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/f(d) इंटू एक्स। बाद में कंपेयर करके जो डी का इक्वेशन होगा वो यहाँ पर आएगा और राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो यहाँ पर आएगी। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो हमने ऑलरेडी देखा है पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। लेकिन ऐसा कई बार होगा नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला हो जाएगा 1/f(d) इंटू एक्स। नाउ the procedure to find the particular integral is depends upon the nature of this function x। क्योंकि x का नेचर जैसे चेंज होगा वैसे ही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की मेथड भी हमारी चेंज हो जाएगी। x क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन किस टाइप के हो सकते हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। सो दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। सो एक्चुअली द प्रोसीजर टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस एक्स पे सब डिपेंड करेगा। और डिपेंड अपॉन द एक्स फिर अलग अलग केसेस है कि अगर स्पेसिफिक इस टाइप का फंक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करना, उस टाइप का फंक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करना। और बाद में एक जनरल मेथड भी है, अगर कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होती है, मतलब फंक्शन अगर स्पेसिफिक उस टाइप का नहीं है तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक जनरल मेथड भी यूज करेंगे। तो सिर्फ अभी इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है हमारा 1/f(d) इंटू एक्स। और एक्स को हम एनालिसिस करेंगे कि x का नेचर कैसा है। तो x का अगर आपको नेचर मालूम गिर गया तो उस हिसाब से क्या करेंगे, हम केसेस यूज करेंगे टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वी स्टार्ट विद द आवर फर्स्ट केस। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट केस व्हेन द फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। केस 1, द गिवन फंक्शन इज exponential, that is e to the power ax, that is called the exponential function. So we know that कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, वो तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारे पास एक फार्मूला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा f(d) और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज e to the power ax। इसके बाद इसका अगर आंसर आपको निकालना है तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस प्रॉब्लम में आपको एक्सपोनेंशियल टर्म चाहिए, तभी एक केस हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म होने के बाद जो x है, मतलब जो वेरिएबल है, उसका आपको कोएफिशिएंट देखना है। तो वो कोएफिशिएंट है यहाँ पर a, और हमारा ऑपरेटर कौन सा है, d का ऑपरेटर है, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कन्वर्ट किया हमने, d के में कन्वर्ट किया। तो जो d है उसके जगह पर आपको a लिखना है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द एक्सपोनेंशियल टर्म। तो हमको सिर्फ क्या करना है, यहां से ये a ढूंढना है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है उसको एक बार नोट करने के बाद जो f(d) में अभी कितने भी d हो सकते हैं, d होगा, d² होगा, d³ होगा, d⁴ होगा। आपको क्या करना है, उस d को a से रिप्लेस करना है। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/f(a), मतलब d इज रिप्लेस बाय a इंटू e to the power ax। लेकिन यहां पर एक कंडीशन बन जाएगी कि f(a) इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर f(a) की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये वैल्यू होगी 1/0, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब आंसर इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन भी आ सकती है। तो उसके लिए क्या करना है वो हम अलग से देखेंगे, लेकिन पहली स्टेप यही है कि आपको क्या करना है, अगर आपको एक एक्सपोनेंशियल टर्म दिखती है यहाँ पर तो इसका कोएफिशिएंट दिखना है और उसको d से रिप्लेस करना है। अभी सॉल्व करते वक्त एक बात आपको और याद रखना है कि जो ये f(d) है, ये फंक्शन है, ये है ऑपरेटर, इट इज ऑपरेटर, और ये इस फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा। तो ये फंक्शन और इधर की जो वैल्यू है इसके बीच में ये ऑपरेटर खड़ा है। तो जब तक ये ऑपरेटर खत्म नहीं होगा ये फंक्शन बाहर नहीं आ सकता। और फंक्शन कौन सा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि d मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें जो x की टर्म है वो
ऐसा समझ लो आप इसके परमिशन के बगैर बाहर नहीं आएगी, मतलब जब तक ये खत्म नहीं करेंगे आप इसको डी को रिड्यूस नहीं करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? इस टाइप से, तब तक ये बाहर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने गलती से ये बाहर ले लिया तो पूरा प्रॉब्लम ही फिर गलत हो गया। तो इसीलिए इसको हमको तब तक सॉल्व करना है जब तक प्रॉब्लम के सब डी एलिमिनेट नहीं हो जाते। डी को क्या करना है? हमको एलिमिनेट करना है। तो पहली बात तो ये है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा, नीचे की टर्म जीरो भी हो सकती है कभी भी। तो जीरो होगी तो क्या होगी? तो उसके लिए एक अलग मेथड है, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन। तो देन क्या करना है आपको? पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आपको मालूम है, 1 एफ ऑफ डी इंटू e टू द पावर ए एक्स। अभी यहाँ पे जीरो हो रहा आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ पे ए पुट करता हूं तो ये आंसर कितना आएगा? जीरो। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको? ये जो नीचे की टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये आएगा एफ डैश ऑफ डी, ये आएगा e टू द पावर एक्स, और डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे फंक्शन किसका? एक्स का है, तो यहाँ पर आपको एक्स देना है। और अगेन क्या करना है? डी इक्वल टू ए करना है। तो डी इक्वल टू ये रखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स इंटू 1 एफ डैश ऑफ ए इंटू e टू द पावर ए एक्स। अगेन कंडीशन क्या रहेंगे? एफ डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अगेन जीरो हो सकता है। तो ये जीरो होगा तो क्या करेगा? हम क्या करेंगे? एक्स है तो एक इंक्रीज कर दो, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव और लेना है, e टू द पावर ए एक्स एंड सो ऑन। कंटिन्यू तब तक करना है जब तक आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको तभी यूज करना है जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा ही नहीं तो आपको ये करने का कुछ काम नहीं है। द एक्सपोनेंशियल केस इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू अदर केस, बिकॉज हियर वी हैव टू रिप्लेस ओनली डी बाय द कोएफिशिएंट एंड only the things noted here that denominator never be zero. If denominator is zero, then we have to apply this condition to eliminate the possibilities of infinite solution. So based upon that, we take the example where the function is of exponential type. So here we go. First example, solve d square plus 6d plus 9 into y is equal to 5 into e to the power 3x. So here I will give you the complete solution of this problem, and to score the maximum mark, what is a procedure to write the solution of this problem, I will explain here. तो जैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे वैसे कि वैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉब्लम का जितना आंसर निकलना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो इसीलिए आपको प्रेजेंट भी अच्छे से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमको एज इट इज लिखना है। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखेंगे हम। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर 6d 9 into y is equal to 5 e to the power 3x, called as इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात ये होती थी हमारी कि हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये इक्वेशन ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसीलिए आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का कुछ काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन लिखेंगे फिर। तो सॉल्यूशन किस टाइप में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? अगर सॉल्यूशन निकालना है हमको, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल cos 2। तो पहला टाइप हमारा ये जाएगा टू फाइंड CF। तो CF के लिए हमको चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन या होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन कब आएगा? CF निकालने के लिए एक बात आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको हमको जीरो रखना है। तो टू फाइंड CF वी हैव टू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और y को भी हमको शिफ्ट करना है, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0।
अभी ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे -6d करके पिछले लेक्चर में भी लिया था हमने CF का प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 6d है, तो इसके आपको फैक्टर निकालने हैं और इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2 है, तो आपको इसके 2 फैक्टर आएंगे। तो इसीलिए फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 मतलब 3 इंटू 3 लिख सकता मैं, और यहाँ पर 6 है तो इसको मैं 3+3 भी लिख सकता हूँ, या आपके पास कैल्सी है तो आप कैल्सी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा, b² प्लस 3d प्लस 3d प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसकी एक पेयर बनाएंगे, इसकी एक पेयर बनाएंगे, तो यहां से d कॉमन निकलेगा, तो ये आएगा d+3, और यहां से 3 कॉमन निकलेगा, तो यहां पर भी आएगा d+3। तो ब्रैकेट देखेंगे आप तो क्या मिला आपको d+3, और यहां पर भी क्या आया d+3 इक्वल टू 0। सो d+3 इक्वल टू 0 मतलब d इक्वल टू -3, और d+3 इक्वल टू 0 मतलब d इज इक्वल टू -3। तो d इक्वल टू -3 हो गया। तो यहां पर देखेंगे आप तो रूट से रियल, क्योंकि इसमें आए नहीं है, एंड दोनों आंसर सेम है, तो ये हो गए इक्वल। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए हमको प्रोसीजर मालूम है कि अगर रियल है, रियल के लिए हमको क्या याद रखना है, c e⁻mx कितने बार है, 2 बार है, तो c e⁻mx 2 बार लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 2 c अलग अलग चाहिए हमको, तो पहले लिखेंगे हम c1, दूसरा लिखेंगे c2, और m को बोलेंगे m1। अभी ये जो m1 है वो दूसरा m1 वही भी है, मतलब ये सेम ही है, तो अगर सेम होते हैं तो ये सेम ही आंसर हो जाएगा। तो टू अवॉइड दिस वी कैन राइट हियर x, तो इक्वल टू c1 e⁻m1x e⁻m1x क्या है, सेम है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम, c1 c2x इंटू e⁻m1, m1 कितना है -3x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है CF निकालने के लिए, और इतना करेंगे तो भी आपको 2 या 3 मार्क तो इसके मिल ही जाएंगे। दूसरी स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप वही है हमको कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, तो वहां इसमें हम वही फोकस करेंगे मैक्सिमम टाइम कि हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो सेकंड आएगा हमारा टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आपको मालूम है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू x। अभी यहाँ पे f(d) क्या लिखना है आपको, तो जनरली जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते तो जो d में जो टर्म होती है, मतलब ये टर्म जो d के फॉर्म में है, तो ये टर्म होगी आपकी f(d), और जो राइट हैंड साइड में जो टर्म प्रेजेंट है इक्वेशन के उसको बोलते हैं हम x। तो ये जो टर्म है d² प्लस 6d प्लस 9, तो ये टर्म हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1/d² प्लस 6d प्लस 9, और वो है 5 इंटू e⁻3x। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो टर्म है ये है ऑपरेटर, और ये इस पे ऑपरेट कर रहा है, तो इसीलिए जब तक ये d को आप ऐड नहीं करेंगे, मतलब d को आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक हम x की कोई भी टर्म इसके बाहर नहीं ले सकते हैं। लेकिन x छोड़ के अगर कोई टर्म है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। तो जैसे कि इस टर्म में आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, तो 5 कैन बी रिटन एज अ कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 5 1/d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू e⁻3x। ठीक है, अभी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो ये फंक्शन है वो इस टाइप का है, ये 1/f(d) हो गया, और ये हो गया e⁻ax, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल टर्म आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, d को सिर्फ a से रिप्लेस करना है, और a मतलब क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो a की जगह पे क्या रखना है, हमको 3 रखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 1/d², तो 3² 6 इंटू d 3 प्लस 9 इंटू e⁻3x इक्वल टू 5 इंटू 1/3² इज 9, 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 9 इंटू e⁻3x विच इज इक्वल टू 36, 5/36 e⁻3x।
क्या किया हमने, सिर्फ जो x का कोएफिशिएंट था a, उसके जगह पे d पुट कर दिया हमने। तो d स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 6 इंटू डी मतलब 6 इंटू 3 प्लस 9, 3 स्क्वायर इज 9, 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 9 तो 36। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहां पर कहीं पर भी डी बाकी नहीं है, और जब आपके पूरे डी एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया आपको, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऑलरेडी निकाला है। तो लास्ट में जो जनरल सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन का जो फार्मूला लिखा था हमने, कंप्लीट सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, वो क्या है, CF प्लस PI। तो हम क्या करेंगे फिर, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज कंप्लेक्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी कंप्लेक्स सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन है, मतलब वहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आंसर। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या है, y, तो ये होगा y का आंसर। तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाला था हमने, c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने अभी निकाला है 5/36 e टू द पावर 3x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। द जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, मतलब प्रिलिमिनरी केस का प्रॉब्लम था, और इतना इजी तो नहीं आएगा आपको थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएगा, या आपको 2 या 3 केस कंबाइन करके भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पहला प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने थोड़ा एक इजीएस्ट प्रॉब्लम दिया उसमें से, कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसको एक्चुअली करना कैसे है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। और अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 6 या 7 में से 7 जो भी मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और प्रॉब्लम लेंगे हम, जो कि थोड़ा पहले प्रॉब्लम से थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें कंसेप्ट हम थोड़ा और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस 6 इंटू dy by dx प्लस 9y इज इक्वल टू 6 e टू द पावर 3x प्लस 7 e टू द पावर माइनस 2x माइनस log 2। तो ये प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम में क्या है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है। पिछले प्रॉब्लम में वो सिंबॉलिक फॉर्म में था, तो इसमें हमको एक चीज ज्यादा करनी है कि पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही स्टेप आपको डबल से लिखना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 कर दिया। सो बाद में इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म। एज, तो यहां पे डबल डेरिवेटिव है, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव तो ये हो गया डी प्लस 9, और तीनों इसमें y है तो y को मैंने कॉमन ले लिया, 6 इंटू ई टू द पावर 3x 7 ई टू द पावर माइनस 2x माइनस log 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। सो इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि हर इसमें तो सोल्यूशन यही है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों में से एक चीज हम पहले निकालेंगे, तो CF फटाफट आप आपका CF निकाल लो, क्योंकि CF में तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। टू फाइंड द CF के लिए क्या करते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू क्या करना है y, और राइट हैंड साइड को 0 रखना है, y को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0। अभी ये प्रॉब्लम तीसरी बार रिपीट हो रहा, यहाँ पे प्लस था सिर्फ, अभी माइनस, पिछला प्रॉब्लम ही है ये। तो इसका CF का आपको मालूम चाहिए। पिछले प्रॉब्लम में हमने -3 निकाला था, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका क्या रहेगा, +3 रहेगा। कैसे आएगा देख लो, 9 इंटू 1 9 है, और ये -6 है, तो 9 मतलब -3 इंटू -3, और -6 मतलब -3 तो इसको सिंपली मैं डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। इसको यहाँ पे पेयर कर दो, तो ये हो गया d-3, और यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो ये d-3। तो एक ब्रैकेट हो गया आपका d-3, दूसरा भी ब्रैकेट हो गया d-3। तो दोनों ब्रैकेट से मैं, तो d की वैल्यू क्या होगी 3, और ये d भी कितना हो गया 3। तो यहाँ पर अगेन देखेंगे आप, जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड रिपीट भी है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए क्या करना है हमको, दो फंक्शन देने हैं, सी टू द पावर एम एक्स, सी टू द पावर एम एक्स, इसको बोलेंगे हम C1, इसको बोलेंगे C2, ऐड कर दो। M1 और M1 दोनों सेम ही है, तो M1 और सेम होने की वजह से यहां पर आ जाएगा x, तो C1 प्लस C2x और e टू द पावर mx कॉमन, तो m है 3, तो ये हो गया हमारा CF। तो CF तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो CF होने के बाद अभी हमारा जो मेन हमको फोकस है वो है PI निकालना। PI कैसे निकालना है, तो हम ट्राई करेंगे इसका PI निकालने के लिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए टू फाइंड PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आपको मालूम है, 1/f(d) इंटू एक्स। f(d) क्या होता है, f(d) होती है d की टर्म, तो 1/d² माइनस 6d प्लस 9, और x मतलब राइट हैंड साइड की पूरी टर्म। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक बहुत बड़ी टर्म है, पिछली प्रॉब्लम में थोड़ी इजी टर्म थी, एक ही टर्म थी, यहाँ पे 3 टर्म का कैलकुलेशन है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी तो हमारे पास सिर्फ केस 1 ही है, तो हाँ ये प्रॉब्लम तो केस 1 से सॉल्व ही होगा। सिर्फ हमें देखना है कि वो केस 1 से कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये सेपरेट है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 टर्म है, और ये है ऑपरेटर, तो ये ऑपरेट क्या करता, ये तीनों टर्म पे ऑपरेट हो जाता, और तीनों टर्म पे ऑपरेट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, ये ऑपरेट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म से, ऑपरेट करना पड़ेगा सेकंड टर्म पे, और ऑपरेट करना पड़ेगा थर्ड टर्म पे। तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए आएगा ये 1/d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू 6 इंटू e टू द पावर 3x प्लस 1/d² माइनस 6d प्लस 9 7 इंटू e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1/d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू log 2। तो इसको मैंने क्या कर दिया, पहले सेपरेट कर दिया। अभी सेपरेट करने के बाद क्या करना है, इसमें x की टर्म को हम बाहर नहीं ले सकते, लेकिन कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ले सकते हैं, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। तो 6 कांस्टेंट है, तो 6 को मैंने बाहर ले लिया, 1/d² माइनस 6d प्लस 9, ये हो गया e टू द पावर 3x। यहाँ पर दूसरे इसमें 7 को बाहर लेंगे, 1/d² माइनस 6d प्लस 9 e टू द पावर माइनस 2x, और तीसरे टर्म में log 2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, 1/d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अभी अगर आप केस ऑब्जर्व करेंगे तो ये है e टू द पावर x, हमारे पास अप्लीकेबल है केस, ये भी है e टू द पावर x, ये भी केस हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर x की वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम होने की कोई बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और 1 को आप e टू द पावर 0x लिख सकते हैं, बिकॉज e टू द पावर 0x क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इस 1 को मैंने क्या किया, e टू द पावर 0x कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर भी e टू द पावर x है, यहाँ पर भी e टू द पावर x है, और यहाँ पर भी e टू द पावर x है, तो आप तीनों इसमें केस नंबर 1 यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू, अभी पहली बात यह है कि आपको क्या करना है, आपको पहली जो टर्म है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में d की जगह पर आपको 3 रखना है, सेकंड टर्म में d के जगह पर -2 रखना है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट -2 है, और थर्ड टर्म में d की जगह पे हमको 0 रखना है। और हर बार डिनोमिनेटर 0 होगा या नहीं होगा ये हम बोल नहीं सकते, हमको चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो केस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो देखिए अगर आप बराबर अगर सोचेंगे, हमने इस इक्वेशन के रूट निकाले थे, d² माइनस 6d प्लस 9, ये यहाँ पर हमने रूट निकाले इसके, d² माइनस 6d प्लस 9, तो इसका रूट कितना है, 3 है, मतलब 3 क्या करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसमें अगर मैं d की जगह पे 3 रखता हूं तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पहला d देखेंगे आप तो वो भी 3 है, मतलब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और चेक भी कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आप d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 9 इज 18, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0।
तो 1/0, मतलब यहाँ पे केस फेल हो जाएगी। तो केस फेल होने के बाद आपको मैंने बताया था कि क्या करना है। अगर केस फेल होती है तो क्या करना है, हमको इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते, इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेते। तो d² का डेरिवेटिव हो जाएगा पहला ट्वाइस d, 6d का डेरिवेटिव हो जाएगा -6, क्योंकि d का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 9 कांस्टेंट है तो 9 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो यहाँ पर आएगा e⁻3x। और अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देना है, बाहर x देना है प्लस। ये इक्वेशन वही है, लेकिन उसके दो ही रूट्स मिले हमको 3, यहाँ पे तो -2 है, तो अभी तो ये तो 0 नहीं होगा, ये सिर्फ 3 के लिए 0 होगा, तो पहले इसमें हमने कर दिया। दूसरे के लिए 0 होगा ही नहीं, तो चेक भी कर लो आप। तो इसके जगह पे क्या करना है, d = -2 है, तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे। तो 1/d का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -6 इंटू डी है, तो ये हो गया -2 प्लस 9 इंटू e⁻2x माइनस log2 इंटू 1/, ये इसका कोएफिशिएंट कितना है 0, तो d के जगह पे 0 आ गया, 6d भी कितना हो गया 0 हो गया, और ये हो गया 9 e⁻0 इंटू x। और एक बार देखेंगे आप, तो यहाँ पर d के जगह पे अगर आप 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, और 6 माइनस 6 अगेन क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ पे और एक बार प्रॉब्लम है, तो वही केस रिपीट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2, d का डेरिवेटिव 1 हो गया और 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया, e⁻3x। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, x इंटू एक्स, दैट इज x²। इसको सॉल्व कर दो, 1/, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 9 e⁻2x माइनस log2, नीचे है 9, और e⁻0 कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही हो गया है। तो यहाँ पर 6 2 कैंसल, तो ये आ गया 3x² e⁻3x प्लस 12 16 प्लस 9 25, तो 1/25 e⁻2x और माइनस 1/9 इंटू log2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस टर्म में, तो इस टर्म में कहीं पर भी d प्रेजेंट नहीं है, मतलब b हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थे, और हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स में एक ही केस अप्लाई कर दिया। सिर्फ यहाँ पे पहले इसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि पहले इसमें d = 3 है, और ऑलरेडी उस इक्वेशन का रूट भी 3 है, तो वो तो 3 के लिए 0 करेगा ही। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो यहाँ पे पुट करके देख लेना, ये 0 हो जाता। 0 हो गया तो क्या करना है, नीचे की टर्म का डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पर x देना है, अगेन वही प्रोसीजर करना है। वो करने के बाद अगेन ये 0 हो गया, तो अगेन इसका डेरिवेटिव ले लिया, और x इंटू एक्स x² हो गया। बाकी की प्रोसीजर तो पहले प्रॉब्लम जैसी है। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और लास्ट में क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे सोल्यूशन लिखने के लिए। सो देयरफॉर लास्ट में हमको चाहिए कंप्लीट सोल्यूशन। सो देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो कंप्लीट सोल्यूशन मतलब किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन y में है। तो CF हमने क्या निकाला था, ये हमारे पास CF है C1 प्लस C2x e⁻3x, और अभी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 3x² e⁻3x प्लस 1/25 e⁻−2x माइनस 1/9 इंटू log2। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो इस टाइप में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको उसके पूरे जितने भी मार्क्स का प्रॉब्लम में 6 या 7 मार्क का, वो पूरे मार्क्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। स्टेप सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि पहले इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। अगर वो ऑलरेडी है तो प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो उसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है। वो होने के बाद ये फार्मूला लिखना है आपका, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF निकालना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी टॉपिक देखे CF कैसे निकालना है, तो वो इजी हो जाएगा आपको। और PI, तो PI के लिए हमने सिर्फ पहले केस में e⁻x देखा है, तो यहाँ पर e⁻x, यहाँ पे e⁻x, और यहाँ पे नहीं है तो e⁻0x मतलब 1, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरे केस होने के बाद आप यहाँ पे और कुछ यूज कर सकते हैं अलग से। तो जैसे केस बढ़ेंगे वैसे आपका नंबर ऑफ टाइम सॉल्यूशन निकालने की मेथड भी हमारी चेंज हो सकती है। मैं इस मेथड से करूंगा या कोई दूसरे मेथड से भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा केस 1 का प्रॉब्लम। तो अगर आपको इस केस 1 में कोई डाउट है
तो आप डिस्कशन जो फोरम है उसमें आप या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। और कुछ अभी इसके बाद कुछ लेक्चर हमारे जो रहेंगे वो पर्टिकुलर इंटीग्रल पे रहेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऐसे 6-7 शॉर्टकट केसेस है, स्पेसिफिक केसेस, और एक अगर कोई प्रॉब्लम किसी केस से सॉल्व नहीं होता है तो उसकी जनरल केस भी है। तो ये पूरे केस लेने के लिए हमको कम से कम 5-6 लेक्चर तो लगेंगे। ये तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट केस इन नेक्स्ट लेक्चर।